السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام ایاز احمد ہے اور میں آپ کی 10 کلاس کا کمپیوٹر سائنس کا استاد ہوں۔ عزیز طلباء، ہم اپنی آج کی کلاس میں یہ سیکھیں گے کہ ہم سی لینگویج کے پروگرام میں ماڈولس آپریٹر کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پہ اور اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کوڈ بلاکس جو کہ ہمارا IDE ہے، انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ، ہم اس کو اوپن کریں گے اور اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی فائل بناتے ہیں۔ فائل پر جائیں گے، یہاں پر گو کریں گے، نیکسٹ کریں گے، یہاں پر ہم اپنی فائل کا نام لکھیں گے۔ آج ہم باب نمبر 2 کی پروگرامنگ ٹائم ہے 2.5، ہم اس کو کریں گے۔ پھر ہماری ایک سرگرمی ہے 2.7، اس کو کریں گے۔ پھر ہماری ایک سرگرمی ہے 2.8، اس کو بھی کریں گے۔ آج کی یہ کلاس بہت ہی دلچسپ ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، اپنی فائل کا جو نام ہے وہ لکھ لیتے ہیں۔ یہ میں نے پروگرامنگ ٹائم 2.5 کے نام سے فائل لکھ لی ہے اور اس کو میں محفوظ کر لیتا ہوں اس فولڈر کے اندر، اور پھر یہاں پہ فنش کے اوپر کلک کرتا ہوں۔ یہاں پہ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم پروگرام کو یہاں پر لے کے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پروگرامنگ ٹائم ہے کیا 2.5۔ This program finds and display the rightmost digit of an input۔ کیا ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ ہم نے صارف سے ایک نمبر انپٹ کے طور پہ لینا ہے۔ مثال کے طور پہ صارف ہمیں نمبر دیتا ہے 234، تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ جو رائٹ موسٹ ڈیجٹ ہے وہ کون سا ہے، یعنی کہ دائیں سائیڈ والا ڈیجٹ، یہ والا ڈیجٹ ہم نے بتانا ہے کہ یہ کون سا ہے۔ صارف ہمیں نمبر دے گا اور ہم یہ بتائیں گے کہ یہ والا نمبر جو ہے وہ کون سا نمبر ہے۔ تو آئیے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں اور پروگرام لکھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہیڈر سیکشن جو ہمارا ہوتا ہے، لنک سیکشن، ہم اس کے اندر اپنی فائل کو انکلوڈ کریں گے، ان کی شامل کریں گے۔ یہاں پہ ہم لکھیں گے stdio.h اور پھر conio.h، پھر مین کا فنکشن لکھیں گے اور پھر یہاں پہ مین فنکشن کی جو باڈی ہے وہ شروع ہوگی اور اس کے بعد ہم پھر یہاں پہ آ جائیں گے۔ اس کو ہم ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں اور پھر اس کو چلاتے ہیں۔ ہم نے ایک ویریبل ڈکلیئر کیا نم اور اس کی ڈیٹا ٹائپ ہے انٹیجر، پھر ساتھ ہی ایک اور ویریبل ڈکلیئر کیا ڈیجٹ، اس کی ڈیٹا ٹائپ بھی ہے انٹیجر۔ اس کے بعد کیا کیا، اس کے بعد ہم نے یہاں پر لکھا پرنٹ ایف۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پرنٹ ایف آؤٹ پٹ فنکشن ہے سی لینگویج کے اندر، اور یہاں پہ ہم نے کیا کیا، یہاں پہ ہم نے لکھا انٹر آ نمبر۔ یہ یہاں پہ ہم نے اسکیپ سیکوینس کا استعمال کیا ہے، لائن کو، کرسر کو نیچے لے کر گئے ہیں، یہاں پہ پھر نیچے لے کے گئے ہیں اور یہاں پہ ہم نے جو ٹیب سٹاپ ہے اس کا استعمال کیا ہے۔ یہ کس طریقے سے نظر آئے گا جب ہم اپنے پروگرام کو چلائیں گے، پھر آپ دیکھ سکیں گے۔ انٹر آ نمبر، تو صارف کیا کرے گا، صارف یہاں پہ ایک نمبر ہمیں دے گا۔ جیسے ہی صارف ہمیں نمبر دے گا، ہم کیا کریں گے، ہم اسکین ایف کا فنکشن استعمال کرتے ہوئے اس نمبر کو فارمیٹ اسپیسیفائر کی مدد سے اپنے ویریبل نم کے اندر محفوظ کر دیں گے، یعنی کہ اس ویریبل کے اندر ہمارا وہ نمبر جو صارف ہمیں دے گا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے، آپ کو یاد ہوگا عزیز طلباء، ہم نے ماڈولس آپریٹر کے بارے میں پڑھا تھا کہ ماڈولس آپریٹر کیا کرتا تھا کہ مثال کے طور پہ جب ہم کسی نمبر کو 10 کے اوپر ڈیوائیڈ کریں یا کسی اور پہ ڈیوائیڈ کریں، تو جو باقی ہمارے پاس بچ جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں ماڈولس۔ مثال کے طور پہ کہ ہم یہاں پہ سیکھنے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم 10 کو تقسیم کرتے ہیں 3 کے ساتھ، تو کیا ہوگا کہ جب 10 کو 3 کے ساتھ تقسیم کریں گے تو یہاں پہ جو جواب آئے گا ہمارے پاس وہ کیا آئے گا، 3۔ لیکن جو باقی بچ جائے گا وہ کیا بچے گا، وہ 1 بچے گا۔ جو 1 بچے گا وہ کیا ہوگا، وہ ہوگا ماڈولس۔ تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے، یہاں پہ ہم جو ڈیجٹ ہوگا اس میں محفوظ کروائیں گے ایک قیمت۔ وہ قیمت کیا ہوگی کہ جو ہمیں صارف نمبر دے گا، ہم اس نمبر کا جو ہے ماڈولس لے لیں گے کس کے ساتھ، 10 کے ساتھ۔ تو یہ بہت ہی آسان ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے، یہاں پہ ہم لکھیں گے رائٹ موسٹ ڈیجٹ آف نمبر یو انٹرڈ از
वो क्या है, वो है आपका डिजिट, यानी कि डिजिट के अंदर जो आपका नंबर स्टोर हो गया है, जो कीमत स्टोर हो गई है, जो कीमत महफूज हो गई है, वो क्या होगी, वो हमारा जवाब यानी कि आंसर होगा। अब हम इस प्रोग्राम को पहले बिल्ड करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे पास कोई गलती नहीं आ रही। अब हम इसको चलाएंगे। जैसे ही हम इसको चलाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कुछ तब्दीली नजर आएगी। पहले जब हम अपना प्रोग्राम चलाते थे तो ये जो लाइन है ये बिल्कुल यहाँ से शुरू होती थी, और ऐसे साथ साथ आज हमने क्या किया है, आज हमने पहले साथ ही क्या किया है कि 2 दफा एन एन लगाया। अगर हम ये नहीं लगाते, मिसाल के तौर पे अगर हम ये नहीं लगाते तो फिर किस तरह से हमारा प्रोग्राम नजर आएगा, अभी देख लेते हैं। जब हम ये नहीं लगाएंगे, अब देखते हैं कि प्रोग्राम किस तरह नजर आता है। अब प्रोग्राम इस तरह नजर आ रहा है, लेकिन जब हम इसको यहाँ पे लगाते हैं तो फिर प्रोग्राम किस तरह नजर आता है, फिर इस तरह नजर आता है, यानी कि दिखने में ज्यादा अच्छा लगता है। अब हम यहाँ पे कोई नंबर लिखते हैं, मिसाल के तौर पे हमने नंबर लिख दिया 45। जैसे ही 45 लिख के हम एंटर का बटन दबाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा राइट मोस्ट डिजिट ऑफ नंबर यू एंटर्ड इज, यहाँ पे लिखा आ गया 5, कि 5 जो है वो आपका दाईं तरफ वाला जो हिस्सा है वो क्या है, 5 है। अब हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे कुछ और लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं 66 और एंटर करते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि 6 है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 92, हमें पता लग जाएगा कि जो हमारा दाईं साइड वाला जो हिस्सा है वो क्या है, 2 है। तो इस तरीके से जब भी मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे हम कोई बड़ा नंबर भी लिखें, मिसाल के तौर पे बड़ा हंसा, हम इस तरीके से ये बड़ा हंसा हमने लिख लिया, तो आप देखिएगा कि हमारा जो जवाब आएगा वो 2 आएगा। ये देखिएगा, हम अभी एंटर करेंगे यहाँ पे, ये देखिएगा कि हमारा जो जवाब आएगा वो क्या आ जाएगा, वो हमारा जवाब 2 आ जाएगा। इसी तरह से आप कोई और नंबर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ भी नंबर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कोई भी हिंसा दे सकते हैं। तो जो सबसे दाईं साइड वाला आपका जो नंबर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें पता लग गया कि हम किस तरीके से जो हमारी प्रोग्रामिंग टाइम के अंदर जो हमारा सवाल था, दिस प्रोग्राम फाइंड्स द डिस्प्ले द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ एन इनपुट नंबर, के ये क्या करेगा, जो भी कोई हमें सारुफ नंबर इनपुट के तौर पर देगा उसका जो सबसे दाईं साइड वाला हिस्सा है वो हमें बता दिया जाएगा। इसको हम अब क्या करते हैं, इसको कमेंट करते हैं और अपनी आगे सरगर्मी की तरफ चलते हैं। अब आगे हम एक सरगर्मी करने के लिए जा रहे हैं 2.7। इसको हमने पहले कमेंट किया हुआ था, इसको अब यहाँ से हटाते हैं। करना क्या है, हमारी सरगर्मी जो हमारी किताब के अंदर है वो ये है, एक प्रोग्राम लिखें जो सारुफ से 2 हिस्सों वाला नंबर इनपुट ले और एक हिस्से को दूसरे हिस्से से ज़रब देकर आउटपुट दिखाए। ये बहुत ही अहम बात है। मिसाल के तौर पे हम सारुफ से 2 हिस्सों वाला एक नंबर लेते हैं, वो नंबर है 32। तो हमने ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जब सारफ हमें 2 हिस्सों वाला नंबर इनपुट के तौर पे दे दे, मिसाल के तौर पे उसने 32 दे दिया, तो हम क्या करें, हम 3 को ज़रब दे दें 2 के साथ और जो जवाब है वो 6 स्क्रीन के ऊपर दिखा दें। ये हमने करना है। ये बहुत ही आसान है, हम इसको अभी समझते हैं। इसको दोबारा एक दफा समझ लीजिए। मिसाल के तौर पे हमें सारफ ने नंबर दिया 45 और हमने क्या करना है कि सारुफ से ये नंबर लेना है, प्रोग्राम लिखना है, और हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, 4 को ज़रब दे देगा 5 के साथ और हमें हमारा जवाब जो है वो इन दोनों का ज़रब देकर जो हमारा जवाब होगा वो हमारे पास आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नंबर, उसकी जो डाटा टाइप है वो है इंटीजर। फिर एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया num1, फिर एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया num2। उसके बाद हमने क्या किया, बहुत ही आसान बात, प्रिंट एफ का फंक्शन हम बहुत दफा इसको इस्तेमाल कर चुके हैं और इसमें हमने लिख दिया एंटर योर नंबर, कि अपना नंबर जो है उसको एंटर करें। यहाँ पे सारफ हमें नंबर देगा और हम उस नंबर को स्कैन एफ फंक्शन की मदद से क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हुए अपने इस वेरिएबल के अंदर महफूज कर देंगे। अब यहां तक तो आपको समझ आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इस वेरिएबल को लिखेंगे num1 को और num2 को। क्या करेंगे कि जो हमारे पास नंबर है, जो नंबर सारफ ने हमें दिया है,
उसको हम पहले तकसीम कर देंगे 10 के साथ, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसका मॉडुलस लेंगे 10 के साथ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप इसको समझिएगा ध्यान के साथ कि मिसाल के तौर पे हमें सारुफ नंबर देता है, हमें सारुफ ने नंबर दिया 62। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने 62 को तकसीम कर दिया 2 के साथ। जब हम 62 को 10 के साथ तकसीम करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो जवाब आएगा वो जवाब आ जाएगा हमारे पास 6। और फिर हम जब 62 का यानी कि इस नंबर का ये वाला जो हिस्सा है हमारे इस नंबर में महफूज है, इस वेरिएबल में, इसका जब हम मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा, ये देखिएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, जब 10 के साथ इसका मॉडुलस लेंगे तो हमारे पास जो जवाब है वो क्या आ जाएगा, वो जवाब आ जाएगा हमारे पास 2। जैसे कि आप जानते हैं कि मॉडुलस में हमारे पास कौन सा नंबर आता है जवाब में, जो बाकी बच जाता है। तो जब हम तकसीम करेंगे 10 के साथ तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और जब हम मॉडुलस लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इन दोनों को, ये जो 6 है ये नम 1 में महफूज हो जाएगा, और ये जो 2 है ये नम 2 में महफूज हो जाएगा। फिर इन दोनों को हम यहाँ पे ज़र्ब कर देंगे, और ज़र्ब करके हम यहाँ पे दिखा देंगे। अब बहुत ही आसान है, इसको हम करके देखते हैं। ये प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे और लिखेंगे आंसर इज फॉर्मेट स्पेसिफायर num1 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ज़र्ब दे देंगे num2 के साथ। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे नंबर लिखते हैं। मिसाल के तौर पर नंबर लिख दिया मैंने 32। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो ये देखें आंसर इज 6, यानी कि 3 के साथ जब हमने 2 को ज़र्ब किया तो हमारे पास क्या जवाब आता है, हमारे पास जवाब आता है 6। इसी तरह से मिसाल के तौर पे हम एक और मिसाल देख लेते हैं, एक और हम हिंसा जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिखते हैं 86। अब इसको जब एंटर करेंगे तो 6 को जब हम 8 के साथ ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 48। अब यहाँ पे हम ज़रब दे रहे हैं, हम यहाँ पर जमा भी कर सकते हैं। ये देखिए जैसे हम जमा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप नंबर दें हिंसा 22, ये देखिए ये दोनों आपस में जमा होके आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे जमा भी कर सकते हैं, ज़रब भी कर सकते हैं, तकसीम भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो समझने वाली ये थी कि आपने किस तरीके से एक नंबर लेकर, एक हिंसा लेकर सारुफ से इनपुट के तौर पे, तो उसकी दाईं साइड वाला किस तरीके से आपने ढूंढना है और बाईं साइड वाला जो हिंसा वो किस तरीके से ढूंढना है। तो ये होगी हमारी सरगर्मी 2.7। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको कमेंट कर देते हैं और अपनी अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली सरगर्मी है 2.8 और ये बहुत ही दिलचस्प सरगर्मी है, इसको ध्यान से समझिएगा। पहले हम पढ़ते हैं कि हमारी सरगर्मी है क्या। हमारी सरगर्मी है एक प्रोग्राम लिखें जो सेकंड इनपुट ले और उनके बराबर घंटे, मिनट और सेकंड शुमार करें। हम सारुफ से सेकंड्स जो है वो इनपुट के तौर पे लेंगे और जितने सेकंड सारुफ हमें देगा हम बताएंगे कि उतने सेकंड में घंटे कितने बनते हैं, मिनट कितने बनते हैं, और अगर कोई सेकंड बच जाते हैं तो वो कितने बचते हैं। अब यहां पे भी इसको समझते हैं हम, ये बहुत ही अहम है। हमने यहाँ पे फंक्शन यूज किया प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में हमने लिख दिया एंटर द नंबर ऑफ सेकंड्स, कि कितने सेकंड्स हैं वो आप एंटर करें। और फिर हमने स्कैन एफ फंक्शन की मदद से क्या किया, यहाँ पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया और यहाँ पे हमने इस अलामत का इस्तेमाल किया और एस के अंदर क्या किया, एस के अंदर यानी कि इस एस के अंदर हमने अपनी उस कीमत को महफूज कर दिया। अब जैसे कि आप जानते हैं मिसाल के तौर पे कि सारिफ ने हमें ये वाली कीमत दी, यानी कि 3667, ठीक है, 3667 ये वाली कीमत हमें सारिफ ने दी। जैसे कि आप जानते हैं कि एक घंटे के अंदर हमारे पास 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं एक घंटे के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे h और उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास s, जो ये कीमत हमारे पास आई है, जो ये सारिफ देगा, हम ये फर्ज कर रहे हैं कि सारिफ ने हमें ये कीमत दी है समझने के लिए। ये कीमत हमें सारिफ देगा तो इसको हम तकसीम कर देंगे 3600 के साथ, यानी कि 3600 के साथ। जैसे ही हम इसको तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो जवाब है वो क्या आएगा, वो जवाब आएगा हमारे पास 1। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम
तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 1। और फिर हम इसका मॉडुलस लेंगे 3600 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हमारे पास 1 जवाब आ जाएगा और फिर हमारे पास 3600 से ऊपर जो हमारे पास कीमत बच जाएगी वो आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे आ गई हमारे पास 67। अब यहाँ पे बहुत अहम बात है, यहाँ पे समझ लीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास 67 आ गए, यानी कि जो सेकंड हमें मिले उसमें से हमने घंटे निकाल लिए। 1 घंटा हमारा निकला, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, 1 घंटा निकला और बाकी हमारे पास बच गया 67। तो ये 67 सेकंड बच गए हमारे पास। अब हमारा जो सवाल है वो क्या था कि एक प्रोग्राम लिखे जो सेकंड इनपुट ले और उनके बराबर घंटे, मिनट और सेकंड शुमार करें। तो घंटे तो हमने निकाल लिए, जब सारिफ ये वाली कीमत देगा तो घंटा बनेगा 1 और पीछे जो सेकंड बचेंगे वो ये बचेंगे। अब जो सेकंड बच गए हमने देखना है कि इसके अंदर मिनट कितने होते हैं। घंटे तो हमने ऊपर ढूंढ लिया, इसमें हमने मिनट देखने के मिनट कितने होते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड यानी कि 60 सेकंड होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, m, और उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे s को दोबारा हम यहाँ पे तकसीम करेंगे 60 के साथ। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रहे, पहले जब सारफ ने हमें कीमत दी थी तो s में 3600 महफूज था, लेकिन इस लाइन पे आके s में क्या महफूज है, 6-7 यानी कि 67। तो अब यहाँ पे ये वाला 67 आएगा और इसको हम तकसीम कर देंगे 60 के साथ, तो हमारे पास जो जवाब है वो 1 आ जाएगा। और फिर हम यहाँ पे s लिखेंगे और s को दोबारा हम मॉड लेंगे, उसका मॉडुलस लेंगे 60 के साथ। तो यहाँ पे भी s की जो कीमत है वो क्या है, इस लाइन में s आ रहा है, फिर इस लाइन में s आ रहा है, तो ये वेरिएबल वही चल रहा है। तो यहाँ पे मुतगैयर भी यानी कि वही मुतगैयर चल रहा है। आप जानते हैं कि हमने ये पढ़ा था कि हमारे मुतगैयर की जो कीमत है वो चेंज हो सकती है, लेकिन इस लाइन में हमारे मुतगैयर की कीमत क्या है, ये। और जब हम इस लाइन में आएंगे, इसको इसके साथ जब हम मॉड लेंगे तो फिर हमारे मुतगैयर की कीमत क्या हो जाएगी, ये, यानी कि s में बाकी क्या बच जाएगा, 7। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट f करेंगे, टोटल नंबर ऑफ यानी कि घंटे, उसको हमने h से लिख लिया, आवर्स, यहाँ पे h आ जाएगा। फिर टोटल नंबर ऑफ जो मिनट है उसको हमने m से लिख लिया, मिनट्स, ये मिनट्स आ जाएंगे। फिर टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स, उसको हमने s से लिख लिया, यहाँ पे सेकंड आ जाएगा। अभी हम इसको चलाते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी कि किस तरीके से चलेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से बिल्ड भी कर दिया और साथ ही चला भी दिया, लेकिन हमारे पास कोई एरर यहाँ पर नहीं आया। अब मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे हम देते हैं यही वाला नंबर देते हैं 3 6 6 7, एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब सारफ ने हमें 3667 सेकंड दिए तो उसमें से 1 घंटा निकला है, 1 मिनट निकला है और 7 सेकंड पीछे बचे हैं। इसमें से 1 घंटा निकला है जो कि हमने यहां से निकाला, फिर 1 मिनट निकला है जो कि हमने यहां से निकाला, और फिर बाकी जो सेकंड बचे हैं वो ये 7 सेकंड है। तो इसको आपने याद रखना है। मिसाल के तौर पे दोबारा हम कोई और नंबर लेते हैं। मिसाल के तौर पे सारफ ने हमें नंबर दे दिया 5000, इसको एंटर करते हैं तो 5000 सेकंड जब हमारे पास आएंगे उसमें से 1 घंटा निकलेगा, 23 मिनट निकलेंगे और जो बाकी सेकंड बचेंगे वो हमारे पास होंगे 20। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम हमने सीख लिया। आज की क्लास में हमने प्रोग्रामिंग 2.5 भी सीखी, फिर हमने सरगर्मी 2.7 भी सीखी और फिर हमने सरगर्मी 2.8 भी सीखी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।